ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो हम आज बात कर रहे हैं कि हमने कल जो क्यूज वाला चैप्टर किया था, that you had to catch some cues and be grateful. So I just wanted some of you to share. Vandana has shared, Archana has shared, and Varun has shared. So Darshan ji, Ekta, I mean, Actually, how many actually cues? क्या होता है? Actually क्या होता है? You see, whenever you get up, you see Yeah, the nature keeps giving you such beautiful opportunities. Nature yeah. keeps giving you such beautiful feelings. You see, I always call it a gut feeling. You see, and why not? That's the way to go. Actually, the Yeah. nature is showing you the way. So the morning, whatever is happening, it's happening for your good. Okay, मैं कल पूरन के शेयरिंग देख रहा था ग्रुप के अंदर. He is totally transformed. Look at him. Hey, the मॉडल बन गया वो। basic step is you have to fall in love with yourself. How True, true. nicely he's fallen in love with himself. He My has. God. He So has. then everything starts falling in place. You see, everything starts falling in place. Similarly, I'm in love with myself. Okay. So my day starts with such a optimistic note, and whenever I come here, what I come here, मैं wire लगा के I'm charging actually. I'm in a very positive environment. This is Yeah. the start of my day. This is the basic cue I'm getting. Okay, live your life on your own terms and enjoy it. Whatever you like. Reading book. You see, this is the book I'm reading nowadays. What is the name? Think like Jay a monk. Shetty. Yeah. Jay Shetty's. Think like a monk. Okay. I've read so many books, but my daughter just sent it. So मैंने कहा चलो इसको ही पढ़ो. पढ़ने में कोई बुराई नहीं है. You everywhere for anywhere from any this thing you will keep getting such nice information, nice knowledge. Yeah. Thank you. आपको आपकी डॉटर ने ये बुक भेजी है, which is a cue for you to get something from this book. Absolutely. This is what I'm saying. See? So we have a blissful living. Yeah. अभी क्या है ना, आपको ये जो बुक भेजी है, that's a cue. Yeah. अब चॉइस आपकी है, आप उसको पकड़ पाते हो और आप उस बुक को पढ़ना शुरू करते हो, उसमें से जो भी आपके लिए है उसको ले पाते हो, और आपको बुक मिली और आपने उठा के साइड में रख दी. The cue was there, whether you were able to catch that cue. Yes. So that is important. Because अभी इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें क्यू पकड़ने की आदत पड़ गई है थोड़ी थोड़ी. हम थोड़ा थोड़ा क्यूज को पकड़ पा रहे हैं. और कल का चैप्टर यही बता रहा था कि आसपास आपके क्यूज बहुत हैं. Just start looking at it. अब जैसे मेरा बार बार गला सूख रहा है, so there's a cue that get up and get a glass of water. So give me a moment. I'll just put my video on hold. I'll get some water. Darshan ji, I need to call you. I was just waiting for my assignment submission. Then I'll call you. नहीं इतने सालों से मैं एक्चुअली I'm actually a people's man. मैं लोगों पे इतना काम कर रहा हूँ, इतना कुछ करता हूँ, और फिर मैं उसमें मैजिक देखता हूँ. जब एक छोटा सा बीज लगाते हो, मिट्टी तैयार करते हो, उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, फिर जब पौधा निकलता है ना, I feel so nice. I feel wow, I can do it. So this is what the human beings are, Human beings are basically, उनकी जो ग्रूमिंग होती है बचपन से, उनकी जो संस्कार डलते हैं वो सब नेगेटिव है. कोई भी पॉजिटिव संस्कार नहीं. तू ऐसा है, तू फलाना है, उठो, बैठ जाओ, चले जाओ, फलाना. अरे यार बस करो भैया. You see, the day you start thinking about yourself nicely, how beautiful you are. मैं सवेरे जब मुझे टॉयलेट में होता है, I laugh when I look at myself. I really clap 100 times to celebrate. Yeah. क्यों नहीं? Nice. So, Jagdish ji, about magical cue, मैंने शायद ये आश्विन जी का सेशन भी अटेंड करा, तो कहीं कहीं मुझे याद था. तो जब my father left, so it was in somewhere in April end. तब से कई बार ऐसे होता है जैसे हम लोग
इंडिया नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं राइट, कौवा कुछ ऐसा, क्रो इज काइंड ऑफ, वो आपको याद दिलाता है। तो वैसे ही बहुत बार मेरे साथ हुआ कि इनफैक्ट कल भी हुआ, तो जैसे कौवा आवाज कर करके आपकी अटेंशन गैदर करता है। जनरली यहाँ पे इतने क्रोज होते नहीं है, समर्स में ही कभी कभार कोई दिखता है तो दिखता हाँ, है, वहां तो बर्ड्स वगैरह नजर ही नहीं आती हैं। नहीं आते ज्यादा। तो it was like so many times it happened after my father's death that I was मतलब वो इतना करता है कि आपकी अटेंशन गैदर करता है, लाइक you you got to notice that, you got to notice that. So वो भी क्यों है, बट मेरे को समझ नहीं आता मैं उसको इंटरप्रेट क्या करूं। See, like if you feel that that is a cue, then that is a cue for you. और इंटरप्रेट क्या करूं ये सोचना पड़ रहा है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मतलब जो भी क्यू आपको मिलता है ना, वो इमीडिएटली आपको कनेक्ट करता है आपके किसी चीज से। ओके या जैसे मान लो अपने अपने असाइनमेंट के बारे में बोला, जैसे ही आपको असाइनमेंट याद आया तो इट वाज अ क्यू कि आपने सबमिट नहीं किया है, सबमिट कर दो, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को सामान नजर आया, इट्स अ क्यू दैट स्टार्ट पैकिंग। या so follow action is pending something, that is what is a cue kind of. it's not only follow of action, it could be that you have not even thought about it and suddenly भगवान जी याद करा रहे हैं या यूनिवर्स याद करा रहा है, ये भी तो रहता है तेरा, ये भी तो करना है। या जैसे अभी वरुण ने शेयर किया, दैट वाज आई मीन दैट वाज सो गुड द वे वरुण शेयर्ड कि उसको लग्जरी कार में उसको फॉर्च्यूनर दिखाई दी, और फॉर्च्यूनर तो दुनिया, आप सड़क पे निकलो हजारों निकलती हैं और रोज ही निकलती हैं, बट उसको कल ही क्यों ऐसा लगा? Because yesterday he was actually looking for the cues, and the moment he saw that car, he he paid gratitude for his luxury car which he wants to own, as if he's already received it. And then when his neighbor was going to Singapore, वो उसने टैक्सी मंगाई और अपना सामान उसमें लोड कर रहा है, तो that was a cue for him that he also wants to go on a vacation abroad, and that was a cue for him to be grateful for that. So this is how it gives you cues. Okay, got it. जैसे मैंने कल शेयर किया था, अब कोयल बोल रही है तो कोयल तो रोज ही बोलती है, बट कल ही मुझे ऐसा क्यों लगा था कोयल बोल रही है, आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर माय हियरिंग, फॉर माय सेंस ऑफ हियरिंग। दैट वाज अ क्यू फॉर मी कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, मिसिंग यहाँ पर कमी है ग्रेटिट्यूड की, तूने दिया नहीं है। मेरा गला सूख रहा है, इसका मतलब आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर माय थ्रोट, बिकॉज दैट इज गिविंग मी सो मच ऑफ power to speak and express myself. And this came just now. मैंने कहा ना मुझे पानी के ग्लास के लिए बोल रहा है वो तो आ ही गया, but this is what I'm supposed to be grateful for. So, okay. इस तरह you have to start looking for cues. हमें तो gratitude भरना है ना अपनी जिंदगी में, सिर्फ यही काम करना है हमें बस अपने पूरे दिन को gratitude से भरना है। अगर आपको ग्लास दिख गया तो आपने पानी के लिए ग्रेटिट्यूड दे दिया, अरे ग्लास, इसमें तो मैं पानी पीती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस वाटर व्हिच क्वेंचेस माय थर्स्ट, व्हिच हाइड्रेट्स माय बॉडी, बिकॉज़ 70% मेरी बॉडी में पानी है, और उस पानी को रिप्लेनिश करने के लिए ये पानी मेरी हेल्प करता है। इट्स लाइक दैट। पर्पस एक ही है, अपने दिन को ग्रेटिट्यूड से भरना, और क्यूज आर समथिंग व्हिच गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। Yeah. Okay. Got that, Vandana? Okay. एकता, अनु, आप लोगों ने कल का असाइनमेंट किया? शालू? Ma'am, Archana this side, ma'am. Yeah, Archana. Ma'am, yesterday I got a very nice cue, ma'am. It was like I was getting angry on something. Yeah. And my mood was very bad, and suddenly I read a message on my phone. It was saying that anger, resentment, anything which you are remembering in the past which is not good are roadblocks to your dreams and desires.
So you have I want everybody to pay attention to what she's saying. It's so connected to our today's chapter. Yeah. Ma'am, it was like I read that a person should release everything what is there in the past, especially anger, fear, resentment, because they are just roadblocks to our desires and dreams. Yeah. So the moment I read that, it was like a cue to me. I just said to myself that I have to be happy. I have to free everything from the past, so that the moment I'll be free, I'll be so near to my dreams. So that was a very good cue to me, ma'am. Yeah. Great. Thank you so much for sharing that. Thank you so much, ma'am. Okay. Ekta, Anu, Shalu, do you have anything to share about yesterday's session? या आपने जो क्यू पकड़े, एक एक क्यू सब जने बताओ। एकता, क्या क्यू पकड़ा आपने कल? मैम एक्चुअली कल बहुत छोटे छोटे क्यूज थे। हाँ हाँ, छोटा से चाहिए, क्यों छोटे ही होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम घर ढूंढ रहे हैं, तो कल कुछ दिनों से ही मुझे लग रहा था कि एक पर्टिकुलर एरिया है जो बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और कल ही ऐसा हुआ है कि उसी सेम एरिया का एक फ्लैट हमारे किसी ब्रोकर ने बताया है। तो कल से वही चीज मुझे लग रही है कि शायद इसीलिए इतने दिन से वहीं का अट्रैक्शन आ रहा था, क्योंकि शायद वहीं जाना का लिखा हुआ है। बहुत एक्सपेक्टेड हूँ, तो आज फाइनली पता चलेगा वो क्यों मेरे लिए कितना जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो क्यों है मेरे लिए, वो आज पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्यों है कि नहीं। आज हम जा रहे हैं वो देखने के लिए। ओके, सो एकता, सो क्यूज आर फॉर पेइंग द ग्रेटिट्यूड। तो जब आपको ये ब्रोकर ने ये इंफॉर्मेशन दी, तो आपने क्या किया? ये मैम ग्रेटिट्यूड दिया एक्चुअली। बहुत आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज्यादा ऐसे थैंक्स वाली फीलिंग वो होता है ना, अरे वाह ये तो वही हो गया जो सोच रहे थे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ज्यादा थैंकफुल वाली फीलिंग भी आ रही थी। फर्स्ट वर्ड ही मुझे थैंक गॉड निकला जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पता चला। और फिर कल से ही वही फील आ रहा है कि वो हो जाए, वो हमारे पसंद का हो एंड ऑल दैट। हाँ, तो अब आप ओके, सो आई वांट टू करेक्ट यू हियर। जो ये हो जाए, हमारे मतलब जैसा हम चाह रहे वैसा हो जाए, अगर आपने मैग्निफिसेंट आउटकम पढ़ा है तो उसमें क्या बोलता है वह, क्या जब भी व्हेन यू आर होपफुल अबाउट समथिंग, व्हेन यू वांट थिंग्स टू गो दैट वे, है ना, तो वहां पर आपको सिर्फ मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, बिकॉज वो होप है। एंड होप में तो डाउट भी है ना, विच इज अ नेगेटिव फीलिंग। हाँ, yeah, so if you want that house, then the only thing you have to do is only pay gratitude and talk about only the magnificent outcome. Okay, तो मतलब मेन चीज ये है that I have to actually accept कि वो वैसा ही होगा जैसा हमें चाहिए और हमें पसंद होगा। हाँ, वही तो चाह रहे हो ना। हाँ हाँ, एक्सपेक्ट तो करना नहीं है ना, वो तो बिलीव करना है कि हो ही गया। बिलीव करना है। हाँ, आपने बिलीव ये करना है कि ये तो हो ही चुका, मेरे को तो मिल ही चुका है। अब वो ही चीज मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है। हर बार मेरे मुंह से यही निकलता है होपफुल और कोई बात नहीं यार, इतने सालों की आदत है या इतने सालों की आदत है, एकदम से थोड़ी जाएगी। थोड़ा जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही आपको ये ऑटोमेटिकली आपको वही लैंग्वेज, वही फीलिंग्स, वो सब आनी शुरू हो जाएगी। क्या जब तक नहीं आ रही तब तक कोशिश करते रहो, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके शालू, व्हाट वाज द क्यू जो आपने पकड़ा? एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं बोलूंगी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और मैंने जैसे आपने बोला कि ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, तो मेरे बच्चों का बिहेवियर बड़ा रूड था मेरे से, तो अभी उनके अंदर बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं उनको हर बात के लिए थैंक यू बोल रही हूँ, तो वो भी अब मुझे रिवर्ट में थैंक यू बोल रहे हैं। ग्रेट,
तो ये मुझे अपने अंदर बहुत चेंज लगा कि हर चीज में मैं जाके जो भी चीज काम करती हूँ किचन में या जॉब में, तो हर चीज में मैं थैंक यू बोल रही हूँ। वो तो ठीक है, बट कल के सेशन में था ना कि आपको क्यों पकड़ना था, कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है कि आपको किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, ऐसे कुछ संकेत पकड़े आपने कल? नहीं मैम, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कल ऐसा कुछ नहीं किया। आपको तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो यूनिवर्स करता है, आपको सिर्फ अलर्ट रहना था कि वो क्या बता रहा है हमें, मुझे क्या दिख रहा है, इससे मुझे क्या करना है अब, तो वो अलर्ट रहना था सिर्फ। हाँ बस ये है कि मेरा बहुत दिनों से घूमने का मन था। मैं आपको जैसे देखती हूँ ना कि आप जगह जगह जाते हो, तो मेरा भी बहुत मन करता है। तो कल बाई चांस मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि कहीं आप घूमने का प्लान करना तो बताओ, तो ये क्लू पकड़ा मैंने। हाँ, सो दैट वाज अ क्यू। एंड उस टाइम पे क्या करना था आपको? थैंक यू बोला मैंने। हाँ, दैट इज इट। तो आपको तो पता है कैसे पकड़ना है क्यू, फिर कैसे बोल रहे हो कि मुझे नहीं मिला कोई क्यू? मैं कोई क्या, बात सब लोग बोल रहे ना गाड़ी वाड़ी का, कि गाड़ी का मकान का मन, क्या ऐसा तो कुछ हमने सोचा ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा हर एक का क्यू अलग है यार, हर एक की जिंदगी अलग है। मैं तो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ मेरा सामान पड़ा है, मैंने कल शॉपिंग करी थी। अब बात करते, सेशन अटेंड में बात करते करते सडनली मेरी गर्दन इधर घूमी और मुझे वो दिख गया सामान। दैट्स अ क्यू फॉर मी टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई बॉट, एंड उसको पैक करना है, ये काम कर लेना, ये क्यू है। ठीक है, थैंक यू मैम। Yeah, thank you so much, thank you for sharing. Anu, हाँ जी before मैम। before we start reading today's chapter, आपने कितने क्यू पकड़े कल? मैम कल एक बड़ा मैजिकल सा कुछ हुआ कि मैंने एक्चुअली आई वाज फीलिंग सो डाउन बाय इवनिंग टाइम, सो एग्जॉस्टेड। वीडियो। अच्छा वेट। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ एक्चुअली आई वाज फीलिंग वेरी डाउन यस्टरडे बाय द इवनिंग टाइम। अभी तो मेरे को आई वाज जस्ट सपोज टू बैंग ऑन किचन फॉर द डिनर एज वेल। बिल्कुल मन नहीं था मैम, जस्ट बिलीव मी। और घर पे ना बच्चे गाने सुन रहे थे, लाइट म्यूजिक। तो पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया, नहीं अगर इफ आई डांस फॉर सम टाइम ना तो आई फील वेरी फ्रेश। एंड यू वोंट बिलीव मैम, मैंने गाने लगाए एकदम झक्कास वाले, 2 सॉन्ग में फुल डांस किया। एंड आई गॉट मतलब सो मच चार्ज कि मैं रात के 12 बजे तक आई वाज सो एक्टिव। सीरियसली, और मैंने इतना थैंक यू करा यूनिवर्स को कि एटलीस्ट उन्होंने मेरे को एनर्जी लेवल दिया। मैम नहीं नहीं, उन्होंने आपको ये क्यों दिया कि डांस कर ले, कि डांस कर, अपने आप को रिफ्रेश कर, जो भी स्ट्रेस जो भी काम वाम का था ना तेरा, जस्ट रिलीज इट और फिर से तू जस्ट मतलब चार्ज योरसेल्फ। एंड आई चार्ज। वाओ, सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मैम मैं खुद नहीं नाची, आप बिलीव करो, मेरे घर में जितने थे मैं खींच खींच के सबको नचाया। And that was the most happiest moment कि मैं सबको मैं माहौल ऐसा कर दिया 10 मिनट में, पता नहीं कोई शादी हो रही है। Wow, that's amazing. Seriously. Great. Okay, so thank you everybody for sharing, and let's start our today's chapter. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने 24 दिन, पिछले 25 दिन, 24 दिन, जितने दिन भी हमने ये बुक की प्रैक्टिस करी है ना, वो आज के चैप्टर के लिए है। ये बुक हमें आज के चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गहरा चैप्टर है, और हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और हमारी लाइफ का आज जो भी हाल है वो इसी वजह से है, जो इस चैप्टर में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो अगर आपने 25 दिन प्रैक्टिस की है तो आप इतने समझदार हो चुके हो कि आप इस वाले चैप्टर को समझ सको और अपनी लाइफ में इसको आप उतार सको। और अगर आपने ये चीज सीख ली तो ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो आपको परेशान कर सकता है, या ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी सिचुएशन हो और आपको ग्रेटिट्यूड भूल जाए, राइट? So it's a very important chapter. I really want all of you to sit on the edge of your chair. आप जहां भी बैठे उसकी एज पे बैठो और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, ताकि आप इसको एक एक शब्द को जो है ना वो आप आत्मसार कर सको, उसको आप बिल्कुल अंदर उतार लो, राइट? So who's going to read today's chapter? I will read. Okay.
Can you see it, Vandana? Yeah. Okay. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Ooh. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, B. 1954, media personality and businesswoman. Okay, ये मेरी favorite है, by the way. मुझे बहुत अच्छी लगती है ये. I mean, the way she's transformed her life. When you read her story, you realize कि जिंदगी ने कैसे कैसे मौकों पे उसको कैसे कैसे challenges दिए और वो कैसे law of attraction से और gratitude से कैसे उन सब से निकल के she is where she is, right? So हमारी सबकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे instances हुए हैं, ऐसे हादसे कहूंगी मैं हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत सारा दुख दिया है, बहुत सारी गहरी चोट पहुंचाई है ना? और हम लोग उससे उभर नहीं पाते हैं. आज भी वो कहीं ना कहीं हमें तंग करती रहती है, चाहे वो किसी रिश्ते को लेके हो या आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो अपनी लाइफ को लेकर, मे बी समथिंग टू डू विद स्टडीज, मे बी समथिंग टू डू विद योर करियर, या ऐसा कुछ भी आपने कभी कोई डिसीजन लिया हो और ऐसे कुछ लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आए हो जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देके गए हैं और आप उस चीज के लिए अपने आप को और उन लोगों को कभी भी माफ नहीं कर पाए हैं. आपको ये लगता है हाउ कुड आई डू दिस, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई, मैंने इतनी बड़ी गलती जिंदगी में कैसे कर दी, है ना? और आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है उस गलती का इम्पैक्ट है कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं है या बाकी लोगों की तरह उतने सक्सेसफुल नहीं है या आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं है क्योंकि you got in touch with somebody and you got in a relationship which was not worth it. या तो आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं करते हो और आप लोगों को भी ब्लेम करते रहते हो, राइट? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया. ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, और ये अप्स एंड डाउन तो हर एक की जिंदगी में आए हैं ना, और ऐसे जख्म भी सबकी जिंदगी में है, किसी के बड़े हैं, किसी के गहरे हैं, और गहरे उनको हम ही करते जाते हैं जितना हम उनको पावर देते जाते हैं. तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपनी जिंदगी में आपने ये सीख लिया ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपने कैसे ग्रेटिट्यूड ढूंढना है, उसमें से आपने क्या लर्निंग लेनी है. क्योंकि देखो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है. क्या अगर आपने वो सीख ले ली पहली बार में तो दोबारा से हादसा वैसा नहीं होता है, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हर बार उसी वैसी ही सिचुएशन से निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक एक्स कोलीग हैं, फ्रेंड भी हैं अच्छे, उन्होंने जब मतलब जहां मैं जॉब कर रही थी, ही वाज one person who was asked to leave at that time. And then when I came to know, थोड़ा ज्यादा उनसे जान पहचान होती चली गई तो पता चला वो जहां पर भी जाते हैं कंपनी की हालत खराब हो जाती है और ये काम बहुत करते हैं, वहां जाके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट कंपनी स्टार्ट्स गोइंग डाउन और वो जहां भी जाते हैं वो कंपनी नीचे जाना शुरू हो जाती है. एंड ही लीव्स द कंपनी विदाउट बीइंग गेटिंग पेड, और उनको पूरे अपने कभी भी उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है. और जब वो काम कर रहे होते हैं तो बस वो उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस ही होती हैं बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि कंपनी को कैसे मैं बचा लूं या ऊपर ले आऊं. अच्छी खासी चलती कंपनी होती है और वो डूबना शुरू हो जाती है. एंड इट हैज हैपेंड विद हिम. मतलब मेरे सामने ही 4 कंपनीज में उन्होंने काम किया है, तो उसमें हर जगह यही हुआ उनके साथ. एंड ही स्टार्ट एज अ HR हेड और उनको बाकी के काम लीगल भी दे देते हैं, वो एडमिन भी दे देते हैं और उनको और भी काम सारे दे देते हैं. एंड ही गेट्स इनटू एवरीथिंग बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प एवरीबॉडी. वो मेरे को अपना, ये तो मेरी कंपनी होगी ना, मुझे इसके लिए काम करना है. एंड ही गोज आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स एंड देन ही गेट्स सक्ड इनटू इट. वो इसके अंदर इतना, मतलब जैसे वो एक दलदल में फंस जाते हैं ना, वो दलदल में नीचे 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 धंसते जाते हैं.
those people start taking him for granted. और वो taking him for granted क्या होता है कि उनको सैलरी नहीं मिलती है. कंपनी की हालत तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हें पैसा कहाँ से सैलरी निकाले. एंड इस चक्कर में अब वो क्या होता है, बिकॉज he feels that, you know, he's obliged, or it's his moral duty to stay with that sinking ship. तो वो वहीं पे टिके रहते हैं, ना कहीं जॉब ढूंढते हैं, ना कुछ और करते हैं, और फिर रोते भी रहते हैं, यार कंपनी का बुरा हाल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही. तुम ढूंढोगे तो नौकरी मिलेगी. It has happened with him 4 times in front of my eyes. So there is some learning in that which is not taking. And he's one person who's not coachable. कुछ लोग होते हैं ना, कोचेबल होते हैं, आप उनसे कुछ बात करो, वो सुनते हैं आपकी बात को, समझते हैं, और उससे कुछ सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग ये होते हैं, वो बड़े रिजिड होते हैं, बड़े अड़ियल टाइप के होते हैं. उनको लगता है मैं सही हूँ, बिल्कुल मैं जो कर रहा हूँ मेरे बेस्ट टू माय कैपेसिटी कर रहा हूँ, और मुझे इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ. ऐसे लोग भी होते हैं. और आप उनको कुछ बताना चाहो तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं. मतलब टू द एक्सटेंट, अगर उनका फोन आता है ना, कभी मैं बात कर रही हूँ, तो एज अ फ्रेंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिम, तो मैं उनको कोई भी एक सेंटेंस भी ऐसा बोल जाऊँ ना, जो उनको लगता है कि मैं उनको मतलब ज्ञान दे रही हूँ या उनको कुछ सीख देने की कोशिश कर रही हूँ, इल से यार प्लीज ये वाली बातें मत कर, बाकी सब ठीक है, हंसी मजाक कर ले, भाई ये वाली बातें मत कर. यू नो, बिकॉज ही बिकम्स सो डिफेंसिव, बिकॉज ही इज नॉट कोचेबल. अगर वो कोचेबल होते तो शायद उनकी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो गई होती. मतलब कैन यू इमेजिन, एक सिमिलर सिचुएशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज, बट ही हैज द सेम एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्स हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और हम वो सीख नहीं ले रहे होते, और वो बार बार वैसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती चली जाती हैं जब तक हम सीख लेते नहीं हैं. तो एवरी सिचुएशन विच इज कमिंग टू गिव अस, हमें लगता है हमें कुछ तकलीफ दे रही है, वो तकलीफ इसलिए है कि उस तकलीफ से निकलकर हम कुछ सीखें और वो गलती दोबारा ना करें. राइट? सो दिस इज द होल चैप्टर इज अबाउट दैट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हमने ऐसी गलतियां अपनी जिंदगी में की हैं और आज भी कर रहे हैं. या सो लेट्स रीड. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yeah, that's what I said. कि हम लोगों ने ये बहुत बार सुना ना, blessing in disguise, है ना? तो blessing in disguise का मतलब यही है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमें बहुत ही पैथेटिक लग रही है, हमें लग रहा है तो बहुत ही अनफेवरेबल है, बट आपको नहीं मालूम उसमें क्या ऐसा एक गुण, ऐसा एक what do I say, ऐसी एक सीख और ऐसा कोई सोना छुपा है जो आपकी जिंदगी को चमका देगा. ऐसा एक चीज उसके अंदर छुपी हुई है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो उसके बाद की जिंदगी आपकी इतनी बढ़िया जाने वाली है. और वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए उस चीज को उसमें से निकालने की, उसको ढूंढने की. अक्सर हम उसको ढूंढते नहीं है और रोते रहते हैं, सिर्फ सोचते हैं उस बारे में और रोते रहते हैं. बट उसमें क्या सीख थी, उसमें ऐसा क्या डायमंड था, उसके अंदर ऐसा क्या गोल्डन नगेट था जिसको हमने मिस कर दिया. अगर हम उस गोल्डन नगेट को पकड़ लेना, मतलब दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू. वो शायद आपको जिंदगी में कभी और नहीं मिलती जो उस टाइम पे आपको उस इंसिडेंट में मिलती है. हाँ जी, पढ़े. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and when we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. ओके, सो कल शाम को ना मैं और मेरे पार्टनर हम लोग बैठ के वी वर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग अबाउट आवर स्वावलंबन, जो मेरा और उनका, वी बोथ आर को-फाउंडर्स, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड फॉर women.
and we were just discussing few things. And so I was going down memory lane, and I was sharing about my life. मैंने कहा मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, which was the turning point, वहाँ पे क्या हुआ था. So because to relate to another woman, women की life कैसी होती है, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, और उससे कैसे वो निकलती है, और वो क्या एक चीज होती है जो वहाँ पे उसको मतलब रोक रही होती है, और वो ऐसा क्या मिल जाता है कि जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है. We were just doing some deep thinking, and we were just doing some brainstorming on that, and I was just going down my memory lane, and what I am today is all because of my experiences. मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आज मैं हूं, अगर मैं किसी को कुछ बता पा रही हूं, इट इज बिकॉज मुझे जिंदगी ने जो भी चैलेंजेस दिए, मैं उससे स्ट्रगल करके, गिर के, पढ़ के, जैसे भी निकली हूं. और जब मैं उसमें से निकली हूं तो कुछ कहते हैं ना, सोना तप के ही ज्यादा चमकता है. तो शायद मेरे लिए वो बहुत जरूरी था. वो ग्राइंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हु आई एम टुडे. तो वो जो ग्राइंड में से निकल रहे होते हो ना, उस टाइम का जो पीरियड होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. बट वो जब डिफिकल्ट पीरियड से आप बाहर निकलते हो ना, तो कुछ ना अंदर से कुछ निकाल के निकलते हो, कुछ सीख लेके निकलते हो. तो वो सीख क्या है? वो सीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए. दैट इज व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट. दैट इज व्हाट गिव्स यू पावर टू गो फॉरवर्ड, व्हिच एक्चुअली प्रोपेल्स यू फॉरवर्ड, जो आपको आगे की तरफ ले जाती है. तो हम वही कल बात कर रहे थे. तो अगर एक बच्चा कुछ सीखना शुरू करता है, अगर आपने ABCD लिखनी भी शुरू करी, तो आपको एक ही दिन में A लिखना या B लिखना नहीं आ गया था. आपने छोटे बच्चे को जब जो चलना सीखना शुरू करता है, तो आपने देखा होगा उसको बड़ा शौक होता है मैं चलूं. वो खड़ा होता है, वो एक कदम रखता है और दूसरा पैर मैनेज नहीं कर पाता, गिर जाता है. वो फिर उठता है और हम लोग उसको बोलते हैं उठ जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा, उंगली पकड़ ले, हम उसको थोड़ा सा सहारा दे देते हैं. वो थोड़ा सा चलना, 1-2 कदम चलता है, फिर वो बेड पकड़ के चलना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे अब फिर वो गिर जाता है, फिर वो उठ जाता है. अगर वो बार बार गिर गिर के वो सीधा चलना सीख जाता है, जैसे हम आजकल चल रहे हैं, हम भी तो गिर गिर के सीखे हैं ना. हम भी तो बच्चे थे, तब हमें भी नहीं चलना आता था, राइट? अगर एक बच्चा गिरता है और बार बार सीखता है उससे, और हम उसको एनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर, यू कैन डू इट. खड़ा हो जा दोबारा से. करते हैं कि नहीं हम? से यस और नो. हम लोग एनकरेज करते हैं बच्चों को कि नहीं, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्या हो गया. साइकिल चलाना सीख रहा है और वो साइकिल से गिर गया तो क्या हो गया? अरे एक दिन में साइकिल चलानी नहीं आती, हम भी गिरे थे, कोई बात नहीं, चल बैठ, दोबारा से तेरे को थोड़ा सा पीछे से बैलेंस करते हैं तो दोबारा से चला. बोलते हैं ना ऐसे हम उसको. Yes, ma'am. Okay. So Vandana, Medha went for the driving test yesterday. उसका ड्राइविंग टेस्ट नहीं क्लियर हुआ. आपने उससे क्या बोला? I told her she needs to practice more. That's it. हाँ, और इसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं. हाँ. It's for the right thing. Yeah. So that's what you told her, and it was okay to fail. पर हमारे लिए ना okay to fail नहीं है. हमारे लिए लगता है कि हम फेल हो कैसे गए, मैंने गलत काम कर कैसे दिया, मैंने उस इंसान पे विश्वास कर कैसे दिया. या व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर लाइफ, और आपको लगता है कि आपने बिजनेस के लिए कोई गलत डिसीजन लिया और आपने बहुत सारा पैसा डुबो दिया, आप उस चीज से उभर ही नहीं पाते हो. आप अच्छा कमा रहे हो, आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, पर बोलते हैं यार मैंने उस टाइम पे ये कर कैसे दिया था, मैं इतना बेवकूफ बन कैसे गया कि दैट अदर पर्सन जो मेरे साथ पार्टनर बन के मेरे साथ आया, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देके चला गया, और मैं बेवकूफ बन कैसे गया, मैं इतना बड़ा बेवकूफ बन कैसे गया. तो आप अपने आप पे ना, यू आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन यू. अगर आपने किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, यार हाउ कुड आई ट्रस्ट अ पर्सन लाइक हिम. सारी दुनिया को दिख रहा था कोई बंदा सही नहीं है, मुझे सबने बोला ही इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, बट मैं पागल थी, इतनी प्यार में उसके अंधी हो रही थी कि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था. मतलब मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी. एंड यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, और वो आपकी लाइफ को चला रही है वो चीज.
क्योंकि आप अपने आप को आज भी ब्लेम करते हो, और जितनी बार गिरते हो उतनी बार अपने आप को ब्लेम करते हो. यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. और जितनी बार, ये तो बुक भी बोली है, जितनी बार उसको आप, जितना आप जल्दी सीख लोगे, वो दोबारा वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं आएगी. जब तक आप सीखोगे नहीं, वही इंस्टेंट्स बार बार होते रहेंगे. तो अगर बच्चा गिर के सीख सकता है, बच्चे को हम इनकरेज कर सकते हैं कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फॉल. व्हाई नॉट आवरसेल्व्स? वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. हम भी गलती कर सकते हैं, हम भी गिर सकते हैं, और गिरने के बाद जो जिंदगी का एक्सपीरियंस मिलता है वो हमें वाइजर बनाता है, अक्लमंद बनाता है. So it is okay. Yeah, let's read. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes, we have made the pain we have suffered from it has been from nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from our mistakes, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Yeah, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ह्यूमन बीइंग्स की क्या है? We don't take responsibility. We don't own things. हम हमेशा किसी और को ढूंढते हैं जिसके ऊपर हम ब्लेम कर सकें. अगर आपका रिश्ते में किसी के साथ किसी ने आपको धोखा दिया, या आपने धोखा खाया, या आपने गलत इंसान को चुना, तो आप उस इंसान को ब्लेम करते हो, पर चुना तो आप ही ने था, चॉइस तो आप ही के पास थी, राइट? सिमिलरली अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या आपके पार्टनर ने आपको जो कुछ डिस्कस किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसके हिसाब से कुछ नहीं किया, तो वो एग्रीमेंट में आप भी तो उतने ही भागीदार थे. तो चॉइस तो आपकी भी थी उस टाइम पे. तो अगर आपने वो क्लॉज नहीं पढ़ा था एग्रीमेंट में, जिसकी वजह से वो सारा पैसा लेके चला गया, तो गलती किसकी है? उसकी थोड़ी है. उसने तो क्लॉज लिखा था, आप ही ने नहीं पढ़ा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज द फर्स्ट स्टेप. और एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं. हम हमेशा किसी को ढूंढते हैं जिसको हम बोले कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, इसने ऐसा किया. मेरे घर में अशांति है बिकॉज मेरी सास बहुत लड़ती है. मेरे घर में अशांति बिकॉज मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मेरे घर में हमेशा क्लेश रहता है. बट स्टार्ट लुकिंग एट इट. आर यू रिस्पॉन्सिबल और नॉट? शुरुआत कौन करता है? और अगर नहीं भी करते हो तो रिएक्ट कौन करता है? तो कहीं ना कहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो. तो अगर आप अपनी जिंदगी में जहां पर भी आपने कुछ भी चैलेंज है आपकी जिंदगी में, या जहां पर भी आपने ठोकर खाई है, वहां पे आर यू स्टिल होल्डिंग द अदर पर्सन, कि उसकी वजह से हो रहा है, कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो? और यहाँ तक तो लोग क्या करते हैं, और कोई नहीं मिलता तो भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसने ऐसा किया, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था, उसने सबके लिए करा, उसने बस मेरा ही नहीं कुछ करा, मेरे लिए उसने कुछ नहीं सोचा. मेरा तो हमेशा मतलब ऐसी मेरी किस्मत लिख के भेजी है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है. आप लोग ऐसे लोगों को जानते हो, नहीं जानते हो? सही ऐसा नो? कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा हर चीज के लिए भगवान को, अपनी किस्मत को कोसते हैं? एक आधा तो सबकी जिंदगी में है. I want others to say yes or no because I can't see the chat. Yeah. Yeah. What about Ekta, Anu? मैम इनफैक्ट चालू. कितनी बार हम खुद भी ये चीज कर लेते हैं हाँ. अननोइंगली. हाँ, लोग तो करते ही हैं, बट कितनी बार हम खुद भी
ये चीज खुद भी वही चीज कर रहे होते हैं. We are amongst them only, one of them. Yes, yes. And till the time magic और लैंडमार्क हैपन टू मी, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही करती थी. So हम भी हमेशा किसी और को ढूंढते हैं ब्लेम करने के लिए. But first thing is to own it up, take responsibility. अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा जो नहीं काम किया, या किसी ने मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए अलाउ किसने किया? मैंने किया. अगर मैंने अपनी जिंदगी को उसके सुपुर्द किया तो किसने किया? मैंने किया. रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. The other person will do whatever the other person will do, but first responsibility is mine. तो अगर आप सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यू ओन इट अप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. एंड उसने बोला बहुत सारे लोग वही नहीं कर पाते हैं. तो आज से हम लोग जितने यहाँ पर हैं, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट व्हाटएवर हैपेंड इन आवर लाइफ एंड लुक फॉर इट कि हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस चीज में, और द होल स्कीम ऑफ थिंग्स में हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल थे. Start looking for that. हाँ, पढ़े. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. Yeah, ये तो बहुत कॉमन है. दिल्ली में तो बहुत ही कॉमन है. मतलब अगर चलान हो गया तो बोले ये कहाँ छुपे रहते हैं, और मतलब ताक में रहते हैं कि कोई मिल जाए और उसका हम बकरा काटें, चलान करें उसका. आप लोगों में से किसी ने ऐसे कभी सोचा है, दिल्ली वालों? Yes. यहाँ पे भी कॉमन है जगजीत जी. जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं और पता भी नहीं चलता कब ये लोग फोटो खींच के और चलान भेज देते हैं घर पे. मतलब क्या है ये? मतलब एक्चुअली 6,000 रुपए चलान में देने के बाद अब मेरी एवरेज स्पीड इज 49. I refuse to cross 49 wherever I go in Delhi. Yeah, so this is what it is. You learned from it. You learned from it. It came in your life to teach you something, and you learned from it. And बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं लर्न करते. वो कहते छोड़ना, 100 रुपया पकड़ाएंगे, 500 रुपया पकड़ाएंगे और निकल जाएंगे. And then you know what happens with them. Many a times they actually get into very serious accidents, and अपनी लाइफ को और दूसरी लाइफ, लोगों की लाइफ को भी वो डेंजर में डाल देते हैं, और उनको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है. तो अगर वो नहीं सीखते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं. और अगर बार बार आपका चलान हो रहा है तो इट्स अ क्यू आल्सो फॉर यू ना, इट्स अ लर्निंग फॉर यू. ये बहुत हो गया भाई, अब तो सीख ले. अब फिर भी अगर नहीं सीखते हो तो फिर चॉइस आप चॉइस तो आप ही की है. हर सिचुएशन में चॉइस आपकी है, सीखना है या नहीं सीखना है. यूनिवर्स तो सिखाने के लिए आपको बार बार बता रहा है, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस दिखा रहा है कि आप इसमें से क्या सीख सकते हो. एंड सो राइटली सेड दर्शन जी कि अगर हम एक बार में सीख जाते हैं तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए लर्निंग है. अब आपने बोला मैं 49 से ऊपर जाता ही नहीं हूँ, या एक बार 6,000 रुपए देने के बाद, राइट? सो बट बहुत लोग हैं जो आज भी ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस कि किसी तरह से मैं इसको ना नजरअंदाज करवा दूं, और मतलब ऐसा कुछ तरीका अपना लूं उनको पता ही न चले कि मेरी गाड़ी का स्पीड कितनी थी. एक्चुअली पुराने दो चलान तो मुझे पता नहीं. इसी आई डिडंट नो व्हेन आई वेंट टू पे द चलान, तब मुझे पता लगा दो तो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं मेरे अगेंस्ट. माय गॉड. और मैंने वो भी मैंने स्पीड उनसे चेक कराई कि क्या स्पीड थी. कैन यू बिलीव इट? इट वाज जस्ट 55. I was just overtaking a lady who was driving slowly, you know, learner. I was trying to overtake her. And I didn't even know because I don't expect, I am so disciplined, I don't expect कि मेरा भी कोई चालान कर सकता है या हो सकता है.
तो वो जो चलान मेरे से पेमेंट ले रहा था, वो भी ही वाज आल्सो लाफिंग है। कहता सर अभी तो ये हाल हो गया है कि लोगों को 10-10 हजार रुपए चलान पेंडिंग पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है। And that is a cue for me to check my challans also. Yeah. Thank you so much for sharing that. But we all can relate to these situations in our life. And these are coming to teach us something. अगर हम सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ बेटर हो जाती है, और अगर हम नहीं सीखते हैं, और अगर हम ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेन करें कि उनको ब्लेम करें कि ये लोग क्यों चलान करते हैं, जब देखो तब चलान कितना बढ़ा दिया, बताओ, मजाक बना रखा है। 2000 रुपए चलान मास्क के लिए नहीं लगाया हुआ, तो स्पीडिंग के लिए 1000 रुपए, मतलब पता नहीं कितना हो गया, अब तो कितना हो गया स्पीडिंग का, 6000, I don't know how much, but it is quite high. So this is their way of teaching you. अगर फिर भी नहीं सीखते हो तो बार बार पे करते जाओ फिर। Yeah, please read. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer from the pain and the consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. आपने एक बार चलान दिया और आपने उससे कुछ सीखा नहीं, ठीक है यार, तो चलान ले ले, ये ले पकड़, आपने चलान दे दिया और आपने सीखा नहीं उसके बाद कुछ भी, और आपने फिर से वही किया, आपने फिर से स्पीड अप किया और आपने फिर रेड लाइट जंप करी, फिर आपका थोड़े गैप के बाद फिर चलान हो गया, आपने कहा चल ठीक है यार, 2 महीने में तो 1 महीने में एक चलान, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं यार, दे देंगे, पर मैं तो ऐसी चलाऊंगा गाड़ी, मैंने तो सीट बेल्ट नहीं लगानी तो नहीं लगानी बस, राइट। वो पेन, वो जो है, वो जो आप चलान पे कर रहे हो, खुशी से तो दे नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं तो चुभ रहे हो ना वो पैसा देते हुए, तो वो पेन तो है, कॉन्सिक्वेंसेस तो है ना उसके, पेन तो है, बट सीखना नहीं है उससे, और उससे क्या होगा, यू विल अट्रैक्ट मोर सच सिचुएशंस, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आगे डीप डायर कॉन्सिक्वेंसेस होते चले जाते हैं। या दैट इज हाउ इट इज। हाँ जी, पढ़े। You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. Okay, now as a human being, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं। अब ये मुझे बताएं, ये जो बेचारे गाय भैंसे, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल दैट, उनको कुछ ऐसी समझ है क्या? नहीं है ना। हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम we are very lucky that we actually can learn from our mistakes, right? हाँ जी, पढ़े। No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. So law of attraction, you know all that. Like attracts like. Mistakes के बारे में बात ज्यादा करोगे तो मिस्टेक्स ही आती जाएंगी जिंदगी में। ब्लेसिंग्स को फोकस करोगे तो ब्लेसिंग्स ही आएंगी। प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे, सॉल्यूशंस बढ़ेंगे। हाँ जी। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts you when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you.
हाँ, तो बहुत बार आज आपने क्या करना है, आपने ऐसी एक मिस्टेक ढूंढनी है जो आपको आज भी परेशान करती है जब आप उसके बारे में सोचते हो, राइट? इट कुड बी कि आपने कोई चीज खरीदी, इट कुड बी पुरानी बात हो सकती है, कि आजकल की भी बात हो सकती है कि आपने कोई सस्ती चीज खरीद ली। मेरे साथ हुआ पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई ऋषिकेश, तो जो मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, शी टुक मी शॉपिंग एंड हमने ना चीप चीप वो टी शर्ट्स खरीदी, आई थिंक 175 और समथिंग की। अब बड़े खुश हो रही थी, हमने देखो कितनी सस्ती टी शर्ट्स खरीदी हैं। एंड माय मेट व्हेन शी वोर इट, एंड उसको पहनने के बाद शी वाज जस्ट डूइंग सम वर्क, वो अपने आप कहीं अटके और वो सारी की सारी फट गई। एंड यू स्टार्ट फीलिंग, यार ये पैसा बचाने के चक्कर में ये खरीदी, ये बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने सस्ती वाली खरीद ली, पर क्या फायदा हुआ। ऐसे होता है कई बार कि हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई आपने गैजेट खरीद लिया, आपने बोला कि वाह ये तो मैं इस जगह से लूंगा तो सस्ता मिलेगा, और आपने वहां से खरीद लिया, और उसकी आफ्टर मतलब कोई वारंटी नहीं है और वो खराब हो गया, और आपके तो सारे पैसे डूब गए, क्योंकि ना तो आपको रिप्लेस करके देंगे, ना वो आपको रिपेयर करा के देंगे, क्योंकि वारंटी भी नहीं है वो। तो आपको लगता है यार दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन, मैंने ऐसे कर कैसे लिया। बट व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट? हर मिस्टेक्स में से आप बहुत सारी लर्निंग्स निकाल सकते हो। जैसे आपको याद होगा, देयर वाज वन चैप्टर अबाउट नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिव ढूंढना। सिमिलरली यहाँ पे हम मिस्टेक्स में से पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, कि ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं, क्या सीख ली हमने उससे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ जी। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and alerted your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Each blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take an example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Second, I am grateful to the police because I am honest with myself. I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. 3. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. 4. I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. 5. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. 6. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. 7. I'm grateful, really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 8. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is to protect my life and my family's life.
9. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. Okay. I would, Yeah. So what you're supposed to do is you're supposed to pick one mistake. Could be something of the past जो आप आज भी आपको तंग करती है, और could be something which has happened recently also. और आपने करना क्या है, आपने उसमें से 10 ऐसे gratitudes लिखने हैं, और उसके लिए आपने question क्या पूछना है, what did I learn from it? And what is the next question? One second, let's go back. Yeah. So what did I learn from the mistake, and what are the good things that came out of the mistake? आपने ये 2 questions पूछने हैं अपने आप से. इन questions को पूछते हुए आपने ये इस तरह से अपने 10 gratitudes लिखने हैं. जैसे अब वो पुलिस वाले की और फाइन की बात हो रही थी, तो उसी के बेस पे उसने आपके लिए ये एक एग्जाम्पल लिखा है, so that it gives you an idea how to look for it. So I think it is quite clearly mentions how to look for it, and it will help you in actually writing your gratitudes. कि आपने उस mistake से क्या क्या सीखा, and how can you be grateful for that. So this is how you're supposed to do it. हाँ जी, पढ़े. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Yes. एक मिस्टेक से अगर आपको 10 चीजें मिलने सीखने को मिलती हैं, तो इतना बढ़िया डिविडेंड तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देती है ना. तो अगर आपने कोई गलती की है, तो उससे आपने सीख क्या ली है, कितनी सीख उसमें से आपको मिल सकती है, वो आपने आज ढूंढनी है और लिखनी है. तो कोई भी एक मिस्टेक ले लीजिएगा, एंड उसके ऊपर आपने ये काम आज करना है. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज आई सेड दैट आज तक हमने जितने चैप्टर्स किए हैं वो हमें इस आज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट पिटफॉल वी हैव इन आवर लाइव्स, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बार बार खींच लेता है, उसी दलदल में खींच लेता है, हम उसमें से निकल नहीं पाते हैं. सो दिस इज वन very powerful practice which will help you going forward. कभी भी कुछ ऐसी मिस्टेक आपसे हो जाती है या आपकी लाइफ में आप एनकाउंटर करते हो, तो you know how to look for what is good in it for you. इसमें क्या ऐसा है जो आप सीख सकते हो, and अगर आप अपने लिए अप्लाई करोगे, तो आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो कि अगर गिरे हैं, अगर वो फेल हुए हैं, तो it's okay to fail, but learns from it. What is it that you can learn from it? That is important. हाँ जी, पढ़े. Magic practice number 26. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessing. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one mistake you made in your life. 3. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. 4. To help you find blessings, you can ask yourself the questions, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for being the best thing that happened during the day. Okay, thank you so much, Vandana, for reading it for all of us. Okay, तो आपको पता चली क्या करना, क्या आपने एक मिस्टेक लेनी है जो आपको बहुत परेशान करती है आज भी, हो सकता है कल की हो सकता है 10 साल पहले की हो सकता है 20 साल पहले की हो, जो भी ऐसी एक मिस्टेक है,
जो आपने जिंदगी में की, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो मिस्टेक में आपका क्या रोल था, how were you responsible for that? क्योंकि हम आज भी अगर उस चीज को के लिए अगर दुखी हो रहे हैं, वो हमें तंग कर रही है, तो रीजन इज बिकॉज हमने उसको ओन अप ही नहीं किया है, हमने आज भी किसी और को ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको ओन अप करना है। अब ओन अप करने के लिए आपको पूरी उस सिचुएशन को ढूंढना है और देखना कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, या उसके बाद आपने देखना उसमें से आपको क्या क्या लर्निंग्स मिली हैं। वो 2 क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, और जो इसमें जिस तरह से ये आपको यू नो द वे इट हैज बीन गिवन एज एन एग्जांपल फॉर ट्रैफिक पुलिस वाला, आप उसको पढ़ें, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर ओन ग्रेटिट्यूड्स। तो आपने 10 चीजें ऐसी लिखनी है जो आपने उसमें से सीखी हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, राइट? And as I keep repeating it, it's a very important and very powerful the chapter which is going to help you in going forward in your life. तो इसको जितनी शिद्दत से और जितनी जिस तरह से बोला गया वैसे करोगे तो आपको बहुत फायदा करने वाला है ये, right? So thank you everybody, and anybody has any question you can say, ask any question, and if you want to share something you can share something. And thank you Puran for joining. Good to see you. It's always gives me a lot of support and strength to see that you're there. Oh, it's my pleasure, Jagjeet, to be among such a vibrant family of gratitude people. Thank you so much. Thank you. Yeah. So anybody has anything to say? Ma'am, मैं एक question पूछना चाह रही हूँ। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं एकता बोल रही हूँ कैलकाटा से। ओके एकता। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि जो भी एक सिचुएशन हमारे पास आई जिससे जो पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन अगर हम उस चीज को ग्रेटिट्यूड देंगे और अगर थैंक यू बोलेंगे, जो बोला हुआ है ना कि मैजिक रॉक को पकड़ के लास्ट में उस चीज के लिए थैंक यू बोलो, तो अगर वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी ऐसा, क्योंकि हम लोग तो तब से यही पढ़ रहे हैं कि जिस चीज के लिए हम ज्यादा थैंक यू बोलते हैं वही अट्रैक्ट होता है। नहीं तो अगर हम मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो? अगर हम नेगेटिव चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे, जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है नेगेटिव, तो वो सिचुएशन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी क्या हमारे? एकता 1 सेकेंड, हम नेगेटिव सिचुएशन के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, हम वो जो लर्निंग्स हमने उसमें से ली हैं, जो वो चीजें हमें सिखा के गई है, जो हमारी जिंदगी में हमें फायदा देने वाली है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब कि थैंक्स कि मुझे ऐसी लर्निंग मिली। और हाँ देखो, अगर हम सीखेंगे नहीं ना, अगर हम उस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे तो वो तो हमें तंग कर ही जा रही है ना। जो हमने गलती करी या हमारी जिंदगी में जो भी हुआ जिसके लिए हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, वो हमें पूरी जिंदगी अब तक तो तंग कर ही रही है ना। हमें सुख तो दे नहीं रही ना, वो दुखी दे रही है ना जब भी याद कर रहे हैं। हाँ मैम। हाँ, तो उसको हमने सुख में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि जो कुछ हुआ सबसे पहले उसमें देखना कि मेरा क्या रोल था, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं इसमें कैसे भागीदार थी। ठीक है, सबसे पहले वो करना है। उसके बाद आपने देखना है कि उसमें से मैंने सीखा क्या। अगर मेरी जिंदगी में ये चीज हुई तो उससे मुझे क्या सीखना चाहिए था जो मैंने नहीं सीखा या मैंने सीख लिया। तो आपने जो सीख ली है ना उस चीज में से, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो जितना आप उस चीज से उसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढोगे ना, तो वो जो चीज आपको तंग कर रही थी वो गायब हो जाएगी, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। फिर वो खाली लर्निंग वाली बात पार्ट जो है वो हमारे साथ रह जाएगी। हाँ, तो आप लर्निंग के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड तो जिस चीज के लिए दोगे वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अच्छी चीज के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो अच्छी चीजें तो लाइफ में आएंगी ना। वो मिस्टेक्स क्यों आएंगी? मिस्टेक्स तब आती हैं जब हम लर्न नहीं करते हैं, तब वो मिस्टेक्स बार बार हमारी जिंदगी में आती हैं। बिकॉज हम कहते हैं मैंने हमारी जिंदगी में ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, एंड हम उसके ऊपर फोकस करते जाते हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो, आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आप उसी को, वैसी ही सिचुएशंस अपनी जिंदगी में और अट्रैक्ट करते हो। आपकी जिंदगी में वैसी ही चीजें बार बार होती चली जाती हैं जो आपको दुख देती चली जाती है। पर हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस चीज ने आपको दुख दिया, आपने सबसे पहले उसमें ढूंढना है आप कहाँ रिस्पॉन्सिबल हो। देखो, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि अगले बंदे की गलती है, तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो अगले बंदे की गलती है, आप क्या कर सकते हो? आप तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इफ somebody else is responsible, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है, तो आप थोड़ी ले जा सकते हो गाड़ी कहीं पे। अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और आप बोलते हो कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैं बताऊंगी कहाँ जाना है, और इसी की वजह से हम वहां गए हैं, और मे भी अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, आप साथ में बैठे हो, आपने बोला आज हम यहाँ चलेंगे, और दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है, क्या, और वो उसने कुछ गलत डायरेक्शन ले ली या कुछ जो भी हुआ, उसकी वजह से कुछ हुआ, तो आप बोले इसने गलती करी, इसको जाना ही नहीं चाहिए था, उस एरिया में तो जाना ही नहीं चाहिए था। पर जाने को कहा किसने? आपने कहा ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? आपकी हुई। और हम सारी जिंदगी दूसरे बंदे को बोलते हैं उस बंदे ने एक्सीडेंट मार दिया, उस बंदे ने वो ऐसे रास्ते से लेके गया जहां से ये चीज हो गई, या भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था मेरी किस्मत में कि ऐसे ही बंदा मुझे मिलना था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सारी पावर किसी और को दे रहे हैं। जब पावर किसी और के पास है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे क्या है कि हम पावर वापस अपने हाथ में ले रहे हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो पावर अपने हाथ में ले रहे हो, अपनी सारी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हो। अब जब दूसरों की को ब्लेम करते हो तो आपने अपनी जिंदगी की बागडोर उनको पकड़ा रखी है। जैसे कठपुतली होती है, जिधर खींचेगा कोई उधर जाएगा वो। अगर आपने बागडोर किसी और को दे दी तो वो जिधर खींचेगा आपको उधर भी जाना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? जब आप बागडोर वापस अपने पास ले लेते हो, वो पावर रिक्लेम कर लेते हो, देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो इसीलिए व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाटएवर हैपेंड इन योर लाइफ, तब आप कुछ कर सकते हो, बिकॉज पावर आपके हाथ में, तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट एकता? यस समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। मैं जब यहाँ आने वाली थी तो मैं अपने पार्टनर के घर जा रही थी टैक्सी से। ओके, अब मैं टैक्सी में बैठी, ओला में थी मैं, डेस्टिनेशन डाला हुआ है, एंड मैं फोन पे लगी हुई थी। जब डेस्टिनेशन के आसपास पहुंचे तो मैं फोन पे लगी हुई थी, और वो ड्राइवर ने तो डेस्टिनेशन के हिसाब से गाड़ी ले जा रहा था, एंड सडनली मुझे लगा ये तो गलत जगह है। एंड अजय से, भैया कहाँ लेके आ गए आप? मैडम जो आपने डेस्टिनेशन जान ली वहीं जा रहे हैं। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, आपको देखना चाहिए था। कह रहा है मैम मैं तो डेस्टिनेशन के हिसाब से ही जा रहा हूँ। गलती क्या किसकी थी? मेरी थी, कि मैंने उस टाइम पे जब टर्न करना था, आई डिड नॉट पे अटेंशन, आई गॉट बिजी विद माई मोबाइल, एंड मैं उसकी गलती निकाल रही हूँ कि तूने यहाँ से गलत मोड़ लिया। एंड दैट मोमेंट व्हेन आई रिक्लेम्ड बैक माई पावर, आई सेड ओके सॉरी, and immediately I called up my partner. I said हम लोग यहाँ पर हैं, I think we have taken a wrong turn, can you tell me how to reach your house? And he told me okay, यहाँ से ऐसे करके मुड़ के आ जाओ, और हम लोग वहीं आसपास ही थे। Now till that time I was blaming him, I was just fighting with him, or I was just telling him कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, and he's telling me आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने कहा आपकी नहीं है, आप देख नहीं रहे हो कहाँ जा रहे हो, आप डेस्टिनेशन में कहाँ लिखा और कहाँ लेके जा रहे हो। आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और क्योंकि मैं उसको ब्लेम कर रही हूँ मतलब मैं उसको पावर दे रही हूँ। द मोमेंट आई रिक्लेम्ड माई पावर बैक, ये मेरी गलती है, आई कॉट माई सेल्फ, यार मैं उसको क्यों बोल रही हूँ, गलती तो मेरी है। मुझे जब टर्निंग आ रही थी तो मुझे खुद चेक करना चाहिए था, मुझे अलर्ट रहना चाहिए था कि भाई कई बार गूगल हमें घुमा के लेके जा रहा होता है। अगर वो घुमा के लेके जा रहा था तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे इसको बताना भैया यहाँ से जाना है। It was my responsibility, not his. The moment I reclaimed that power, I could do something about it, ना? Yes. इसी तरह से जिंदगी में जब हम किसी चीज की पावर वापस अपने पास ले लेते हैं, that is by claiming, reclaiming.
योर पावर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में दोगे तो वो जहां ले जाएंगे, जैसे खींचेंगे आपको वैसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, और वैसे ही जी रहे हो, वैसे ही जी रहे हो। बट अगर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो तो सबसे पहला रूल, थंब रूल is that take responsibility. Does it make any sense to you, Ekta? Yes, ma'am. Okay, great. Anybody else has any question? Ma'am, hello. Yeah. Yeah, you can hear me. Yes, Yeah, ma'am. yeah. I wanted to know कि जो स्टोरी आपने मुझे एकदम स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि जो एक बंदे हैं जिनका हर बार ऐसा होता है कि वो जिस जॉब का ना, वो सिचुएशन ऐसा क्यों आ रहा था उनके लिए, और वो कैसे वो करेक्शन, वो अभी भी नहीं सीख रहे ना उसमें से, ही इज जस्ट उसमें अट्रैक्टिंग। हाँ देखो, वो क्यों सीखने वाली क्या बात हो सकती है उसमें, वो तो उन्हीं को पता क्या सीखना है उसमें से। अगर मैं उनकी कोचिंग करूं, मैं उनको बता सकती हूँ उनको क्या सीखना है, पर वो भी नहीं करना चाहते हैं। अगर वो चाहते ही नहीं है करना, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक होता है कि हम खुद बैठ के सोचते हैं कि अच्छा मुझे, जैसे ये बुक बता रही है आपको, आपने उसमें से ढूंढना है कि मेरे लिए अच्छा क्या निकला इसमें से। इट इज एक्चुअली टेलिंग यू हाउ टू डू इट। उसने सारा आपको एक्सरसाइज करके बताया कि अगर आप स्पीडिंग कार के लिए आपको चालान होता है तो आप अगर ट्रैफिक पुलिस को ब्लेम ना करके ये देखते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने स्पीड अप किया, मैं इसमें से क्या क्या सीख सकता हूँ, किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो उसने 10 ऐसी चीजें लिखी कि जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। कि अगर मैं स्पीडिंग ही करता रहता तो एक्सीडेंट हो सकता था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द पुलिस मैन कि वो लोग हम लोगों की सेफ्टी के लिए यू नो दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। उसने वो पूरे 10 के 10 लिखे हैं। इसी तरह से आपको भी ढूंढना है लर्निंग क्या है उसमें से। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी अपनी अगर डेस्टिनी तक नहीं पहुंच रहे तो कहीं पे कुछ है जो हमको ढूंढना है। तभी तो मैंने बोला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 25 दिन की प्रैक्टिस के बाद यहाँ पहुंचे हो तो आप इस काबिल हो गए हो कि आप ये ढूंढ सकते हो। इसीलिए ये चैप्टर यहाँ पर है, और ये हमारी चैप्टर जो है हमारी जिंदगी में हर कदम पे हमारी मदद करने वाला है। दैट इज व्हाई आई सेड दैट। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि इस चैप्टर को आप आराम से अलग से पढ़ो, समझो। उसने जो वहां पे जो 10 आपको एग्जाम्पल्स दिए उनको समझो, 2 क्वेश्चंस दिए उनको समझो, उसके हिसाब से अपनी जो लाइफ की जो भी आपकी वो मिस्टेक है जो बार बार आपकी जिंदगी में हो रही है उसके बारे में सोचो एंड ट्राई टू राइट इट। अगर नहीं समझ आ रहा, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल, यू कैन ऑलवेज send a WhatsApp message to me and we can get on a call and I can guide you how to do it. But ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ये चैप्टर is something which is going to be a guiding force for us, जो हमें हर सिचुएशन से निकाल सकती है। जब हम गड्ढे में गिरने लगे तो ये हमें एक्चुअली में पुल कर सकती है बाहर कि अरे नहीं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता। बिकॉज मैं दूसरे को ब्लेम करूंगा तो मैंने अपनी सारी पावर, अपनी सारी शक्ति उस इंसान को दे दी कि वो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करे। और अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, सेल्फ एनालिसिस करना है कि हाँ, आपने उस पर्टिकुलर जो मिस्टेक है उसका एनालिसिस करना है और उसमें आपका सबसे पहले आपका क्या रोल था उसको देखना है। उसके बाद इसमें से आपने क्या सीखा, वो 2 क्वेश्चंस है ना जो इसमें दिए बुक में चैप्टर में, उन 2 क्वेश्चंस का आंसर दोगे आपको अपने आप मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 1 मिले, 2 मिले, ज्यादा ना सोच पाओ, नो इश्यूज। वो वाला जो चैप्टर, वो जो वहां पे एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको सिचुएशन और उससे कैसे उसने वो 10 ग्रेटिट्यूड्स निकाले वो समझ आ जाएंगे। जब वो समझ आ जाएंगे आप उसको अपने वाले मिस्टेक पे अप्लाई करके कर पाएंगे। राइट? Anytime you have any problem, I am here. I'll teach you. I'll help you in doing that. Right? Is that okay, Ekta? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Anybody else has any question? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। आज का थोड़ा सा हैवी लग रहा है सबको सेशन, है ना? लग रहा है क्या?
Heavy लग This रहा was है? chapter. This chapter was actually for me. That is why you read it, Vandana. I always say there are no coincidences. कभी भी कोई coincidence होता ही नहीं है. वो चैप्टर जो बोलता है ना कि आज मैं पढ़ूंगा, वो उसी के लिए होता है उस दिन. And so that's really good. You got that this chapter was for you, and the key was, you know, the not to play mothers and take responsibility of. Yes. I don't know. Yeah. Yeah, that was the key. जब भी हम victim वाला गेम खेलते हैं ना, हम हमेशा दूसरे को पावर दे रहे होते हैं. But आपको realize कैसे होगा कि आप victim वाला गेम खेल रहे हो? That is a big deal, right? You have to realize if you're not happy, you're not blissful, you're not enjoying life, and कोई भी situation आ रही है, आपको लगता है हाय ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये उसने किया मेरे साथ. इसका मतलब when you are playing blame game, you are being a victim. जैसे ही आप किसी और को blame कर रहे हो, आप victim बन जाते हो, because आपको लग रहा है किसी ने आपके साथ ऐसा किया, किसी और ने आपके साथ ऐसा किया. तो किसी और के साथ तो तभी करोगे ना जब आप किसी के अंडर होगे, जब किसी का आपके ऊपर होल्ड होगा, तभी तो कोई कर पाएगा आपके साथ बुरा. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो पावर आपके पास है. मतलब आई हैव कम अक्रॉस पीपल दैट जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है और हस्बैंड बीवी को मारता है, तो आप बोलोगे उसमें उसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो, it is her responsibility because she allowed him to raise his hand on her. Reason कुछ भी रहा हो, चाहे उसने बोला मेरे को अपना घर बचाना था, बच्चे छोटे थे उनको पढ़ाना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी उसकी है ना, चॉइस तो उसी ने करी थी उस टाइम पे. जिंदगी हमें हर सिचुएशन में चॉइस देती है. 2 चॉइस हमारे पे हमेशा होती है और उस टाइम हम जो चूज करते हैं वो डिसाइड करता है हमारी जिंदगी कैसे जाने वाली है. तो अगर उस टाइम पे उस लेडी ने वो डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चों के लिए अब इस शादी में रहना है या इस घर में रहना है, तो दैट वाज हर चॉइस एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, किसी और की नहीं है, उसके हस्बैंड की नहीं है. अगर वो उसको मार रहा है तो इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी चोज दैट पाथ. तो ऐसे ही अगर आप अपनी सिचुएशन जो भी आपकी मिस्टेक है उसमें ढूंढना शुरू करोगे एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट where were you responsible and how can you reclaim that power back, only then you will be able to do this exercise, right? But as a third person आप देखते हो तो आप यही सोचते हो ना कि हस्बैंड भी तो मार रहा है, right? It's a physical torture. थर्ड पर्सन की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो पर्सन की बात कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहा है. थर्ड पर्सन की तो बात ही नहीं कर रहे. थर्ड पर्सन को तो जो दिख रहा है वो तो वही बोलेगा ना. अब अंदर की बात तो सबको ही नहीं पता होती. एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना. अब हमें क्या मालूम उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि वो हाथ उठा रहा है. मे बी शी इज इंस्टिगेटिंग हिम, मे बी द सिचुएशन इन द हाउस इज लाइक दैट ही इज फ्रस्ट्रेटेड and that frustration is caused by the environment at home. How do we know? Yep. The only problem is, as a human being, we are always judging people. But अब मैजिक करने के बाद इतनी समझ आनी चाहिए कि हम we can't judge people because if you remember that we don't know what the other person is dealing with. We don't know what kind of battle a person is fighting. अपनी जिंदगी में क्या challenges वो face कर रहा है, हमें थोड़ी पता है. हमें तो ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, टिप ऑफ एन आइसबर्ग. नीचे कितनी बर्फ है हमें थोड़ी पता है, कितनी गहराई है उसके दुख में या उसकी तकलीफ में, हमें थोड़ी पता है. So yeah, that is how you become compassionate towards people, because every human being is fighting a battle, yaar. And that is why, you know, when you become a person who practices magic, you stop judging people, you stop analyzing people, you only work on yourself, and you always being compassionate to others. And that is the best quality of life, according to me. It could be different for you, I don't know. Yeah. No, it's actually good. It's peaceful. कुछ दिमाग में कुछ कचरा नहीं चल रहा है, शांति वाली वो है.
You know, yesterday when I was sitting with my partner and his wife, we were having dinner and we were just discussing things. And I was talking about my life and we were, as I was sharing, एक woman की क्या challenges होते हैं और वो किस तरह से उसमें से निकलती है ना. So we were just discussing all that. तो उस टाइम पे हम लोग ये सब बातें कर रहे थे. तो तुमने क्या बोला था वंदना अभी? I lost it. Negative, otherwise peaceful होता है. This way. Peaceful, yeah, peaceful. Yeah, thank you. Peaceful होता है. So what I was talking about to him was that, you know, as of today, I don't have any resentment, any grudges, any regret in my life. And life is so peaceful. मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. और you know, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, क्योंकि नहीं है तो मैं पीसफुल हूँ. Right? Peaceful हो तभी आप grow करोगे. That's true. That's true. Because सारी energy otherwise तो negativity fight करने में निकल जाती है ना. Yeah. सारी energy negativity में निकल जाती है. Positive के लिए तो time ही नहीं होता. Right? That is how it is. Yeah. So thank you everybody. It was a wonderful session. थोड़ा सा heavy है और वो बनता भी है because now we are towards the end of the session. तो वो थोड़ा heavy तो होगा ही because now तो you are matured people. You know how to go deeper in gratitude. So this is one way of getting deeper into gratitude and transform your life. Yeah. So thank you so much. And we will meet you tomorrow at 6:20. And me and Puran, we are working out details for the next session, when to start. And we want to make it more, valuable for you. We want to add few things, value addition in the sessions. And we will be talking about maybe, before the session ends, I'll ask Puran to come and explain what all we are planning to do in the next session. And okay, then today is, अब मुझे कौन बताएगा आज कौन सा दिन है और कैसा वाला दिन है? Today is Wealthy Wednesday. Oh, okay. Wonderful. So today is Wealthy Wednesday. So have a wonderful Wednesday and I'll see you tomorrow at 6:20. Good morning, ma'am. Good morning, Daksh. How are you, beta? Ma'am, he has come to do prayer. He's waiting. Oh, I got that. Thank you so much for joining us. Thank you so much. And anybody gets stuck anywhere, अगर आपको आज के चैप्टर में कहीं पे भी कुछ परेशानी आ रही हो, नहीं कर पा रहे हो, just drop me a message and we'll get on a call and just sort it out. Okay? Okay, so let's do the gratitude prayer as Daksh has joined us for the prayer. So fold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Thank you. Okay. So thank you everybody and Meenu आपने बहुत late join किया है आज और आपकी शक्ल मुझे एक बार भी नहीं दिखी. Yes. So smiley morning to you and smiley face दिखा दिया करो सुबह. Okay. Good morning. Yeah. Okay guys, thank you everybody and Thank you, ma'am. see you tomorrow morning. Bye bye. Thank you. Bye Daksh. Bye bye.